मेहनत का दूसरा नाम तरक्की है। मेहनत जिसने भी की उसकी जीत पक्की है। हिम्मत करके बढ़ लो आगे, वरना पछताओगे। मत घबराओ जीवन में, वरना पीछे रह जाओगे। हमको भी आगे बढ़ना है, सबको एक साथ चलना है। हर एक नारी हमारी है, चाहे वो हरदम हारी है। देवदीति फाउंडेशन ने यह ठानी है, हर एक नारी मजबूत बनानी है, हर एक नारी मजबूत बनानी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी अग्रवाल। मैं आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभी मेंबर्स का। देवदीति फाउंडेशन समय समय पे बहुत चीजें करती रहती है एनवायरनमेंट के लिए भी। जैसा मेरी लिखी हुई खुद की पंक्तियों में मैंने बताया कि हम देवदीति फाउंडेशन किस तरह नारी को प्रोत्साहित कर रही है और आगे बढ़ाने का, हर फील्ड में ले जाने का उनको प्रयास कर रही है। देवदीति फाउंडेशन की ये जो जूम की सीरीज चल रही है उसके थ्रू हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, और साथ साथ जो लेडीज घर में काम करके पक जाती हैं, फैमिली की सेवा कर करके थक जाती हैं, उनको अपने लिए कुछ करने का, एंटरटेनिंग, कुछ लर्निंग, सब हमें यहाँ पे ये जूम सेशन से मिलता रहता है। अब इसके अलावा मैं आज की हमारी जो वक्ता है, जो कि देवदीति हमारे परिवार की ही सदस्य है, निरुपमा गुप्ता, उनका वेलकम करती हूँ। वो एक टैरो कार्ड रीडिंग है, वो रीडर है। वो जितनी अच्छी बाहर से, जितनी खूबसूरत बाहर से है, उतना ही प्योर हृदय है उनका अंदर से, वो उतनी ही सुंदर है अंदर से। वो टैरो कार्ड के थ्रू हमारी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करेंगी। और मैं चाहूंगी कि जिस जिसको भी अपने कोई भी क्वेश्चंस है वो उनसे पूछ सकते हैं, वो जरूर उनका रिप्लाई करेंगी। ओवर टू निरुपमा। Thank you so much. And the poem that you wrote was brilliant and very well expressed and very true and correct, I would say that. And coming to me, I'm Nirupama S. Gupta, a tarot and numerologist. And I have a page, Nirvana Spiritual World, on Facebook as well as Instagram. Okay, so coming to tarot today, as we are doing tarot, so I'll just talk a little bit of tarot before we start. What exactly is tarot? What do you understand by tarot? क्या है tarot? It is simple. It is just simply it is just a tool. Nirupama, just a second. I think somebody is on unmute. Please, we can hear you coughing. Please put yourself on mute. My request. Start. So tarot is a tool. It is a tool for divination. Now, what is divination? Divination, it is the will of the divine. कि हम जो will है divine की, that is divination. And tarot सिर्फ एक महज tool है जो हमारे को guide करता है to reach that path. And tarot, it is a royal path. इसे royal path क्यों कहते हैं? Because it is very magnificent. It is very spiritual. And because it is a path, so it is a journey also. So it is a magnificent spiritual journey comprising of 78 cards, out of which 22 are major arcanas. Arcanas again means mystery. And 56 are minor arcanas. When we talk of major arcanas, it is a major thing, the major things that are happening in our life. And it begins from zero, the fool, the journey. जब हम शुरुआत करते हैं, that innocent pure soul we are, we go through those learnings, those experiences, and then we reach the world, our ultimate goal, our ultimate purpose. So that journey is depicted, and every card is special. Every card is meant for a particular person, and it means differently for everyone. So with the divine power vested in me, I would like to help you all through the guidance that these cards have. So it's nothing personal. It is just whatever I will get to know, I will be just saying that. And another thing, I would request you all to please sync your energies with me. कि आप प्लीज अपने माइंड में वही क्वेश्चंस रखें जो आप पूछना चाह रहे हैं, ताकि एनर्जी सिंक हो एंड कार्ड्स निकले सही और आपको जवाब में दे पाऊं. अनदर थिंग, ताकि कार्मिक बैलेंस किसी के पास ना रहे, प्लीज आप 1 रुपी का कॉइन या तो टेम्पल में दे दीजिएगा मेरे लिए, या आप उसको अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा.
या आप मेरा पेज निर्वाणा स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइक कर दीजिएगा। जो आपको मन करे आप कीजिएगा, क्योंकि कार्मिक बैलेंस हमें किसी का भी नहीं रखना चाहिए। प्लीज स्टार्ट। Okay, so Ashima Jindal. I'll be shuffling my cards and will be wanting you to please put your energies and just think of that one question or questions that you wish to ask. I will be speaking with Ashima Jindal. Ashima ji. Yeah, can you hear me? Yes, very much Ashima ji. Namaskar. नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, एकदम बढ़िया हूँ। मुझे लॉकडाउन आपसे कैसे कर रहा है आपको? लॉकडाउन ठीक है, बहुत अच्छा है, बस हस्बैंड थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में और अपने बारे में एक एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ जी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो जो डिस्टर्बेंस उनकी है, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं थोड़ी सी बेसलेस कह सकते हैं हम, तो उसको हम किस तरह से, कब तक रहेगी वो और कैसे ठीक कर सकते हैं उसको? ओके, सो आप पूछना चाह रही हैं कि जो उनका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है हाँ वो जी, ठीक कैसे होगा, है ना? उसके लिए हम रेमेडी देख रहे हैं। तो हम हाँ जी, देख हाँ रहे हैं कि उनको क्या हर्डल आ रही है और उसको वो कैसे ठीक कर सकती है, उसके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। ठीक रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आशिमा जी, तो आप अपनी आईज क्लोज करेंगी, सिंक कीजिए अपनी एनर्जीज, अपने हस्बैंड के बारे में सोचिए और साथ साथ वो क्वेश्चन भी। जी हाँ, आईज खोलिए। ओके, इनके आपके हस्बैंड के हर्डल में ऐसा दिखता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई ऐसा बंदा जो शायद ऐसा लगता होगा उनका दोस्त है, लेकिन कार्ड ऐसा बताता है शायद उनका वो दोस्त नहीं होगा। आप किसी को बहुत अपना समझते हैं लेकिन वो अपना अपना नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है। आपका हाँ कार्ड जी, दिखा रहा है कि परेशानी इस वजह से है इनको, ओके ओके। और ये इनके साथ परेशानी हो रही है, और ये शायद दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करें वैसा करें। तो अगर वो अपने माइंड से वो कॉन्फ्लिक्ट निकाल देंगे कि आराम से सोचें, इसे एक थिंकिंग प्रोसेस में डालें, आराम से सोचें, थिंक करें, तो फिर उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन उनको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कोई अपना, कोई कई बार क्या होता है, कोई दोस्त भी अपना होता है लेकिन लास्ट मिनट पे वो दोस्त का काम नहीं करता, एकदम से हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ सो ही जी, हाँ हैज टू बी केयरफुल। यस। ओके। और अपने लिए मुझे ये पूछना है कि मेरा जैसे आजकल ये मन होता है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइड चली जाऊं। मुझे कभी लगता है मैं थोड़े दिन बनारस जाके रहूं या सोमनाथ जाके रहूं, तो मुझे इस तरह भी कोई सक्सेस मिल सकती है क्या? So you want to say that do you see yourself going on a pilgrimage? कुछ यस। ऐसा? जी हाँ, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ओके, अगर आप ऐसा करना चाहेंगी तो आपके लिए अच्छा है, आप कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू। Yojana. Yojana. Yojana, are you there? Is there but not there? I thought no. Yojana, Okay, dear. Yojana, unmute yourself and speak. Okay. Hi Yojana, how are you? I'm fine. How are you? Very well. Congratulations on your nature therapy. I've been practicing it on my husband and it works wonders. Yes. Okay. दाना मेथी बांध दो उनके अंगूठे पे, थ्रोट के लिए। Red color on thumb. Okay. Okay. My How can I question. help? First of all, you're looking very pretty. Thank you so much. My question is, I'm very disturbed. Actually, सब कुछ है होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मेरी
मुझे कुछ तबीयत खराब है मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कब तक इस टाइप का सा जो है वो कब तक चलेगा, या मैं एक्चुअल में कुछ है मुझे तबीयत जो लॉन्ग टाइम के अंदर मुझे नुकसान दे सकता है। आपकी हेल्थ चेक करें। आपकी हेल्थ ऐसे चेक करते हैं कि पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, आगे कैसी रहेगी, क्या हर्डल आ रहा है और उसके क्या गाइडेंस है। हाई स्टार्ट करें आपके लिए। राइट। हाँ, यस। हैं आप में कुछ प्रॉब्लम है भी या ऐसे ही माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, अभी चेक करते हैं। कृष्णा जी प्लीज आप अपनी एनर्जी सिंक कीजिए मेरे साथ, आईज क्लोज कीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग एंड जस्ट थिंक ऑफ योर हेल्थ। जी हाँ, आइए। यस। ओके, पास्ट में आपकी हेल्थ ये तो बताते हैं सही थी। आपके प्रेजेंट में हाँ बहुत मेसी सी सिचुएशन दिख रही है। It shows a very messy situation in your present. And ये आपकी messy situation में जो भी दिखता है मैं वो सब बोल देती हूँ, किसी के बैठने से भी बोल देती हूँ, चलेगा ना? सब अपने चलेगा चलेगा। हाँ, तो ये messy situation है ना, ये ऐसा दिखता है कि आपकी खुद की created है। ओके। आपके माइंड में क्रिएटेड है, आपने अपने आप को किसी तरीके से ना प्रेशर किया हुआ है एंड यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन। इट इज अ सेल्फ क्रिएटेड। अगर ये सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन, इसका एक फायदा होता है, आपकी क्रिएटेड है, आप इसको हटा सकती हैं। तो माइंड गेम है ना ये तो हमारे लिए। आगे जाके जो फ्यूचर दिखता है आपकी हेल्थ में वो भी यही दिखा रहा है कि थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगी एंड थोड़ा वो आइडियलपन होगा। तो आपको ये अभी से कंट्रोल करना होगा योजना जी। ओके। हर्डल में आपके जो आया है, हर्डल में आपकी कहीं पे ईगो अड़ती है, आपको थोड़ा सा एग्रेशन और थोड़ा एग्रेशन कम करना होगा। तो आपकी हर्डल है आपका एग्रेशन। होता होगा कभी ऐसा आपके साथ, कहीं ईगो अटक जाती होगी, कहीं एग्रेशन आ जाता होगा, तो यही आपकी हर्डल दिखाता है, आपकी परेशानी का कारण यही है। और आपकी जो गाइडेंस आई है वो भी ये दिखाती है कि थोड़ा सा इमेच्योरिटी है और अगर आपको बैलेंस क्रिएट करना है चीजों के बीच में। शायद आपकी माइंड बहुत क्लटर्ड है चीजों के साथ और आप मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं मतलब बहुत सारे काम आप शायद करना चाह रही होंगी, लेकिन आपको उसमें बैलेंस क्रिएट करना है। ओके, राइट। So it is self-inflicted problem which you can easily balance and concentrate on what you want to do. You need to concentrate on your thoughts and then just put them down and then decide, prioritize what you really want to do. Okay. मेरे को बहुत कुछ करना है पर मेरे को उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, मैं आज के दिन में क्या करूँ। आप उसको ऐसे शॉर्टलिस्ट कीजिए अपने माइंड को, फिर आपका खाली हो जाएगा ना माइंड, आप लिख लेंगे उन सब चीजों को। तो से चूज कीजिए और आराम आराम से कीजिए, ये तो यूं निकल जाएगा। ओके, राइट। आपको ऐसा फील होता है, आपके साथ ऐसा होता है क्या? फील तो ऐसा नहीं होता, पर हाँ, बस मेरा माइंड थोड़ा बहुत सारी कंफ्यूजन्स ढूंढता रहता है। शायद मैं बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ और उनको सॉल्व नहीं कर पाती, ये मुझे फील होता है। हाँ, बिकॉज देखिए ना, अभी मेरे पास हाथ तो दो ही हैं और एक ही दिमाग के, और मैं दो हाथों से 10 चीजें करना चाह रही हूँ। मेरे को थकान भी होगी, मुझे स्ट्रेस भी होगा और मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं 10 चीजें एक साथ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उसमें से चुन लूंगी कि मेरे को अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और मैं आराम आराम से करूंगी, तो मेरे 10 के 10 काम भी हो जाएंगे और मैं वो प्रेशर कुकर वाले सिस्टम में नहीं रहूंगी, मेरे में वो प्रेशर नहीं बनता रहेगा। Segregate your thoughts. और उस चक्कर में शायद मैं कुछ भी कर नहीं पाती, कि बहुत सारी चीजें सोचती हूँ और एक भी नहीं कर पाती हूँ।
आपके इसमें दिखाता है कि आप दो चीजों के बीच में झूल रही हैं और आप उसमें अपने आप को आराम से डिसाइड करें आपको क्या करना है, उसे बैलेंस क्रिएट करें, हो जाएगा. Okay. Thank you. Most welcome. Thank you so much. Most welcome. Next is Malvika Kaura. She requested that she has to go, so please we can take her next. Hi Malvika, how can I help you? Hi Nirupma. Nirupma, I'd also message you my questions. One was regarding health and the other one was regarding love. The one about health is that I have second time in lockdown ruptured my ligament and I do not know what is causing that. So it's very worrisome. And in times like these, to go to a hospital to get an MRI is a little scary because of risk of infection. So I just wanted a health reading from you, that what am I missing out on? What am I not doing right? Or, you know. So let's look up your health, Malvika. Please think your energies with me and just think of your health. Okay, here we go. Yes, thank you. Your health will be fine, it says. You have that mystical thing about you. And you like to look ahead in life, it says. So there is some mystery about your health, but seems okay. Oh, Shall I see how it's going to be in the future? Okay. Okay. Yes. Yeah, you may trip. You have to be careful about your health in future. Okay. And any guidance as to Yes, what kind of look that up. Okay, there could be a major problem related to your health. I'm sorry to say that. It is like all of a sudden something might just go wrong. So watch your steps, be careful, and especially if you're stepping out, be very, very careful. You could get a case of all of a sudden problems. अब you're not anticipating something, हो सकता है पाँव फिसल जाए, हो सकता है सीढ़ी से गिर जाए, हो सकता है, you know, things like that. That all of a sudden thing can happen, but if you know in advance that something like this might happen, so you will be watchful. Okay. Simple things, don't wear heels, don't go when it's raining, make sure that you don't slip, do that anticipate things if you really want to step out. But yes, there seems to be a problem for sure. Okay, thank you. And about my relationships, I wanted to ask you that is there someone in the cards in future, or is something in the past going to work out in the future? Okay, so let's look up your relationship, your past, present, future, yeah? Yeah, please. There's nothing in the present. So. Okay. Your past seems to have been loaded with money. And where your present is concerned, and it showed a lot of fertility also in the past. Present, it shows that you're juggling between two relationships, is what it is saying. And the future is saying that you will have to nurture your relationships. The nuance is nurturing for you. Okay. The guidance is that you have to put in all the effort. You have to do it. In order to achieve success in relationship, you will have to nurture it. एक पौधा है, एक बीज है, उसको फर्टिलाइजर भी देना है, पानी भी देना है, सनशाइन भी देना है, वो काम आपको करना है. आपको अपनी रिलेशनशिप को नर्चर करना है. एंड प्रेजेंट में यू आर दिखा रहे हैं कि यू आर स्प्लिट बिटवीन टू पीपल. There's nobody. There's nobody. What it is showing is what I'm telling you. It's showing a relationship between two people. That you are having a relationship, you're juggling between two relations. And in the future, it is saying that nurturance is the nuance. Is there any guidance as to where is this? Is it an old relationship that is going to resurface in future? It could be that also. It could be that. Or is it someone new who's going to come? That it is not saying. Okay, that it is not saying. But I can check that for you if you would want that. Please, because the old relationship is a
No, it says nothing like that for you. Okay. So it could So, be but any. it just says that yes, you will find yourself dealing with two relationships, and in order to continue with the relationship, you should choose. You will have to be committed. You will have to nurture that relationship. Okay. You Thank have to invest in it through time, through your thoughts. Anyhow, yes. Okay. Thank you so much, Nirupma. I wish you the very best in your journey forward. I think no one could be better suited for this role than you. Thank you. Thank you. And I always wish best wishes and blessings to you too. Always. Thank you so much for the platform, ladies. And I'm going to take your leave because I have a class. So take care, all of you. Yeah. Bye. So next is Geeta Nair. Geeta ji. Hello, Geeta ji. Okay, she's not here probably. Meenakshi Agarwal. Meenakshi. Hi, Meenakshi. Hi, Nirupma. How are you? I'm fine. मेरा क्वेश्चन मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो अभी करंट में है मेरा बिजनेस, उसमें हम कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्या वो हम ऐड ऑन कर पाएंगे, और कर पाते हैं तो उसमें क्या सक्सेस रेट है? तो आपकी बिजनेस की पोजीशन देखते हैं, ठीक है? प्लीज क्लोज योर आईज एंड प्लीज पुट योर एनर्जीज विद मी. Let's get. Yeah, darling. Your business is showing end of something and beginning of new. So it shows that हाँ, आप कुछ नया आपके साथ जुड़ेगा. आप उसका सक्सेस रेट भी चेक करें. जुड़ना तो है ही, इसमें तो आ गया है, न्यू बिगनिंग्स हैं. 100% सक्सेस इज गारंटेड. ओके, थैंक यू. आएगी ही आएगी और आपका काम जुड़ेगा. बट हो सकता है जो काम जुड़ेगा वो थोड़ा से समय में जुड़े. ये नहीं कि अभी बोला अभी रात को जुड़ गया, ऐसा नहीं. काम है टाइम के बाद, हाँ, जैसे एक ब्रेक लगता है ना, ब्रेक लग के आपके साथ नया चीज जुड़ेगा, लेकिन जब वो जुड़ेगा तो उसका सक्सेस आएगा आपको. ओके, थैंक यू. मोस्ट वेलकम. We have Geeta Nair ji here. Geeta Nair ji, please unmute. Can you hear? I've unmuted. Is it unmuted? हाँ, बोलो. जी नमस्कार, कैसी हैं आप? Fine, I'm okay. So nice to see you. It's a pleasure to see you too. My question is, actually, I don't basically have any big problem, but thoda health-wise issues hai. Plus, we are like, I'm living with my son. तो हमारा ये घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है अब. तो we are thinking of changing the house. Now, we don't know what to do about it. Ki we should live paas alag or we should live इकट्ठे. I mean, जैसे all discussions. मैं समझ रही हूँ आपकी बात, हाँ जी. So I want to know, like, everything is fine. We are getting along very well. We just are thinking in future what should we do? जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, they need their space and all. Like, what should I do about it? What should I tell my children to do? How many children do you have, may I ask? Children, one son, which I'm staying with, and one daughter. She's in Gurgaon. She's also married. So your son is married? Yeah. I got a granddaughter also. Okay. Yeah. ठीक है गीता जी, तो हम सबसे पहले क्या पता करें? पहले आपकी हेल्थ चेकआउट करें. Health we check करो, and I'm worried about my old age also. I mean, there's nothing wrong. बस आजकल I am little. I was working. अब हमारा कॉलेज भी बंद हो रहा है, तो कॉलेज से भी छुट्टी मिल रही है, तो थोड़ा डिप्रेशन भी नहीं बोलूंगी मैं, बट आई जस्ट डोंट नो. ऐसा कहें कि जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, एक वो पिक्सी डस्ट चाहिए, है ना, कि भैया कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मजा आ जाए जीवन में. I know that is the thing. That is missing. हाँ, वो मस्ती मिसिंग है, वो खुशी मिसिंग है, वो चॉपीनेस मिसिंग है. भैया कुछ हो जाए, कुछ कमाल हो जाए, है ना. हमें ना गीता जी. Just sitting at home doing nothing. जैसे बच्चे हैं, they have work, they have future. My daughter
mother-in-law बच्चों को पढ़ा रही है. I mean everybody is busy. I don't have anything to do. घर में सर्वेंट्स हैं, काम भी हो रहा है, और मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी खराब थी आजकल. I have a slip disc in my neck, so I am not doing anything. So you know, like, और कई friends की या family में I have seen people who are going down business wise या other problems. So little जैसे unsettled feeling नहीं आती है, वो आ रही है. How old are you, if I may ask? I am almost 62. This month I'll be. इसी तो एज है, एज भी ज्यादा नहीं है, 50 की तो मैं होने जा रही हूँ. आप भी ना. तेरे को भी पतला, हाँ मैं पतली होंगी कि नहीं बेचारा. आप जैसी हैं, बहुत प्यारी हैं. एंड लेट्स चेक आउट योर हेल्थ फर्स्ट, ठीक है? पहले मालूम करते हैं कि ये हेल्थ की क्या कहानी है, क्योंकि जब हेल्थ है तो वेल्थ है ना? हेल्थ है, अगर हम ठीक हैं, हम अपने ऊपर निर्भर हैं, तो बाकी सब हम चीजें टैकल कर लेते हैं. तो जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम्हारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. तो आइए ना, एक्सप्रेस कीजिए प्लीज, अपनी एनर्जीज दीजिए ना मेरे को थोड़ी सी. हाँ जी, अपनी एनर्जीज दीजिए ना, बस अपने हेल्थ के बारे में सोचिए इस वक्त. आइए आंटी जी, आपकी हेल्थ देखते हैं. आपकी हेल्थ अच्छी दिखा रहा है ये. आगे देखिए, आगे कैसी रहेगी? आगे गड़बड़ है. गड़बड़ है? हाँ सॉरी, आगे गड़बड़ है. कैसे मतलब? बैक इश्यूज दिखाता है ये. बैक इश्यूज? हाँ. नेक में तो प्रॉब्लम है, बैक में तो नहीं है. हाँ तो ये कुछ इश्यूज दिखा रहा है आपके हेल्थ को लेकर. अच्छा देखते हैं ठीक कैसे होएगा, ठीक कैसे होएगा देखते हैं. हाँ जी. आपने बहुत ज्यादा, आप ओवरबर्डन दिखाता है ये कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं. आवाज नहीं आ रही, can't hear you. Something wrong. Shachna, she can't hear Geeta me. ji, can you? We can hear her very well. आप अपने headphones लगा के सुनिए. Coming, sound coming. गीता जी, आपकी तरफ से इंटरनेट की प्रॉब्लम है, because we can hear her very well. Okay, दोबारा let her talk again. हाँ गीता जी अभी जो हेल्थ है आपकी ठीक दिखा रहा है, अच्छी दिखा रहा है, लेकिन आगे हेल्थ में इश्यूज दिख रहे हैं और थोड़े मेजर इश्यूज दिख रहे हैं. और आपके लिए दिखा रहा है कि आप ओवरबर्डन दिखा रहा है मेरे को. तो आप किस चीज से आप अपने शायद स्ट्रेस से ओवरबर्डनड हैं इस टाइम पे, आप मेंटली ओवरबर्डनड हैं इस टाइम पे, आपको ओवरबर्डन दिखा रहा है. आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए ना, इतना मत सोचा कीजिए क्यों आएगा, कैसे करें, ऐसे ना सोचें. रिलैक्स कीजिए. मतलब वो मेरे को पूरा ओवरबर्डन दिखा रहा है कि आप मतलब इतनी जोर से अपने दिमाग में फंस गई हैं इस टाइम पे. तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा. और हाँ, आपको हेल्थ पे ध्यान देना है. आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपकी नेक को स्ट्रेस हो. किसी भी वजह से मत कीजिएगा प्लीज. ओके, ठीक है. हाँ जी. Okay, so can we move next? Can we move to the next? Old age and all. ओल्ड एज में आपको क्या बताऊं, मैंने आपको बताया आपको हेल्थ का ध्यान रखना है. अभी जैसी आपकी हेल्थ है, अभी आपकी हेल्थ जो आपके हिसाब से नॉट टू पैनिक वाली है, अभी हेल्थ आपकी अच्छी दिखा रहा है, लेकिन आगे आपको सावधान रहना पड़ेगा. सावधान, आई रियली मीन दैट गीता जी. आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपकी नेक वगैरह स्ट्रेस हो. आप पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये सर्वाइकल के लिए क्या क्या नहीं करना होता है, आप मत कीजिएगा उसमें से कुछ भी. ठीक है. हाँ जी. और अपने माइंड को डिक्लटर कीजिए, मत सोचिए. You are right. That's the exact word. I should declutter my mind. Yeah. आपको घर के बारे में पूछना था. घर के बारे में पूछना था, क्या है प्लान? पूछो कि आप मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कैसे पुट करूं कि आपको आपके बेटे के साथ शिफ्ट होना चाहिए, ऐसे पूछूं मैं? हाँ, ये भी हो जाए कि हमें भी साथ में शिफ्ट करना चाहिए कि we are happy where we are, वो अलग हो जाएं कि हम इकट्ठे रहें, क्या करें? तो ऐसा देखते हैं कि आप अपने बेटे के साथ शिफ्ट होएं या नहीं होएं. ठीक है, चलो ठीक है. आप हो जाएं, क्योंकि आपको उनसे बहुत इमोशनल बैलेंस मिलता है. वो शायद आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करते होंगे. तो ये कह रहा है आप हो सकते हैं शिफ्ट अपने बेटे के साथ.
गीता जी. I think let's take the next question. उनका ना internet कुछ issue है. हाँ, but just tell her that she can shift because she gets emotional gratification from her son. That is what it is showing. उनका I think निरुपमा there's a major internet problem. वो freeze भी कर गई हैं क्योंकि. So do you think? अच्छा, आप बता दीजिएगा उनको बाद में please. ठीक है. Can we move? Yes, please. Okay, next is Taposhi. वही तो मैं कह रही हूँ. Taposhi, can you please unmute yourself? Yeah, hi. Thanks, Sajna. Hi, Nirupama. How are you? Very well. How are you? I'm good. Acha, so I have a very, very brief question. I mean, depression apart, everything. I mean, all that is fine. I just have one question. There's something that I've been wanting to pursue since 15 years. I've roughly tried for that, but successful. Even now, I came to the brink of it, but it was not successful. So can you tell me if I'll get it finally or not? Okay, so there is something that you are trying for a long time and you have not achieved it, and you want to know whether you find any success in it or not. Yeah. No, whether I will get success in it. Yeah, that's what the question is. Yeah, that's the only question. So yeah, let's just sort that out. Yeah. Please infuse your energies with me. Yeah. Okay. So we'll just look that out. Yeah. आपको सक्सेस मिलेगी. आपके हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा. आपको मिलेगी सक्सेस. Thank you so much. You have to work hard for it, and it will be yours. Okay. And do I have to use some external, anything external for it also? I mean, anything extraneous rather. I would say any extraneous ways or methods to do it. Do I need to infuse those things into it or no? So we can ask, will it come naturally or you need to do something for it, right? Right. Okay. Now this says that maybe you will depend on someone, that person will help you with it, but it will not happen. So that person at the last minute will create a ruckus for you without you knowing it also. So, but I'll get success if I do it on my own. That means yes. That means yes. Because it is better to do it yourself than get cheated from someone thinking that you are giving that person money, वो बंदा करेगा या वो कुछ भी kind में दिया लेकिन वो धोखा देगा. 100% धोखा दे देगा आपको. As the world is nowadays, I mean, you can't really trust it. Oh no, I can't say that. We can't generalize it. But it is always nice to, if you know something, then why waste? Right. You're absolutely. That's how I feel about it. Okay, fine. Thank you so much. You're most welcome and best wishes. Thank you so much. Thank you. So next is Anila Khandelwal ji. Anila ji, please unmute and speak. Anila ji, are you there? हाँ, yes. Please बोलिए. अनिला जी नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ, निरुपमा जी, hello. Nice to meet you. It's a pleasure meeting you too. हाँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती थी जी हाँ. कि मैं फ्यूचर लाइन में जाना चाहती हूँ बहुत आगे लंबा, और थोड़ा ये भी पूछना चाहती थी कि मुझे आगे कुछ पर्सनली मनी की इनकम भी हो सकती है क्या? Okay. So are you trying to say कि आपको spiritual line से मनी की इनकम होएगी, ऐसा पूछ रहे हैं हम? नहीं, मैं फ्यूचर लाइन में तो आगे जाना चाहती हूँ. हो सकता है कि ये नहीं पूछ रही हूँ मनी आगे मेरे को चाहिए, आगे उसकी कितनी मेरे को आगे इनकम है क्या? नहीं, तो मैं स्पिरिचुअल साइड का क्या पता करूं? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ कि आप आगे बढ़ पाएंगे स्पिरिचुअल में या नहीं. हाँ, आगे मैं कितना बढ़ूंगी. अच्छा. और मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा आगे जाकर. तो एक एक करके लेते हैं. पहले आप स्पिरिचुअल साइड चेक करते हैं कि उसमें आपको आप कितना बढ़ेंगी, कितना सक्सेस मिलेगा आपको उसमें. अनिला जी आंखें बंद कीजिए और 2 मिनट बाद स्पिरिचुअल साइड अपनी सोचिए आप.
आइए देखते हैं। आपको स्पिरिचुअल साइड में 100% सक्सेस मिलेगी। 100% जिसे कहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ And, हमें नहीं बोलना होता 100%, पर मैं आपको बता रही हूँ 100% सक्सेस है आपकी। हाँ। दूसरी चीज आपने पूछी कि आपके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो होता ही नहीं है, पैसे तो होते ही हैं कि हाँ हमारे को अच्छे से होंगे या नहीं होंगे, हाँ, है ना। बहुत अच्छे हैं। इसमें ऐसा दिखता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी पैसों के लिए, लेकिन आप उस टाइम पे शायद सल्क कर रही होंगी, या शायद आप सेल्फ आइसोलेशन मोड में चले जाएंगी, या आपको कोई चीज है, किसी चीज ने आपको परेशान किया होगा और आप उसी के बारे में सोचती रहेंगी, तो वो शायद अपॉर्चुनिटी चले जाए। मैं आपको बताऊं ये टैरो कार्ड्स हमें कैसे गाइड करते हैं। अगर हमें ये बात पहले से मालूम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे हस्बैंड को मेरे को पैसे देने हैं, और मतलब मेरे को अपनी खुशी में पैसे देना चाह रहे हैं, और मैं इनकी किसी बात से परेशान हूँ, एंड मैं तो अपने कोप भवन में बंद हो गई हूँ, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को दे दें, और मैं तो जी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा टाइप्स कर रही हूँ। और फिर अगले दिन मेरे को अच्छा लगता है, मैं बोलती हूँ, तब तक ये कहते हैं मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर लिया। तो हमारे को जब अपॉर्चुनिटी आए हमें वो सीज कर लेनी चाहिए है। उस टाइम पे हमें पीछे इसने मेरे साथ ये किया, आगे ये करेगा, ये सब नहीं सोचने का है। उस टाइम पे आप अपने माइंड को खोलिए और वो अपॉर्चुनिटी ले लें, और फिर आपके पास पैसा आ जाएगा। तो पैसा मैं यही पूछना चाहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मैं चाहती थी कि मेरे को अपना बहुत पैसा हो। और दूसरा एक और क्वेश्चन है। एक मिनट, आपने समझा मैंने क्या बोला है? मैंने कहा कि आपके पास पैसे आने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हाँ जी। उस टाइम पे आप प्लीज वो अपॉर्चुनिटीज ले लीजिएगा। आप कुछ इधर उधर का आगे पीछे का मत सोचते रहिएगा, आप कुछ मत सोचिएगा, बस आप वो अपॉर्चुनिटी कैश कीजिएगा। उस टाइम पे ले लेंगी तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू। और मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों आगे सक्सेस होंगे या नहीं इतने ज्यादा? मैं एक बेटे के साथ तो रहना चाहती हूँ, एक बाहर ही रहेगा ज्यादातर और एक इंडिया में रहेगा। तो इंडिया वाले के साथ मैं रहना चाहती हूँ, तो रहूं और वो दोनों सक्सेस रहेंगे लाइफ में या हम नहीं? एक चेक करते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि इंडिया वाले बेटे के साथ आपका रहना कैसा रहेगा। ठीक है, और दोनों बेटे के साथ सक्सेस बस एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि तो मैं आप आंखें बंद करके के साथ मेरे को इसमें ठीक से जवाब नहीं मिला है कि आप रहें या ना रहें बेटी के साथ। मैं एक बारी और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? दोनों बेटे मेरे सक्सेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे एक बेटे के साथ तो रहना ही पड़ेगा ना, मैं अकेली कैसे रहूंगी? करेक्ट। आपके दोनों बेटे सक्सेसफुल रहेंगे। आपके दोनों बेटे सक्सेसफुल रहेंगे, दोनों बहुत फ्यूचरिस्टिक होंगे, बहुत विजनरी होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ माइलस्टोन्स इकट्ठा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनको उनका फ्यूचर अच्छा ब्राइट दिखता है, दोनों बेटों का फ्यूचर अच्छा ब्राइट दिखता है। हाँ, तो एक्चुअल में मेरे साथ प्रॉब्लम, आपको थोड़ा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ मैं, क्योंकि और भी लोग हैं। एक्चुअल में क्या है कि मेरा है ना इतना मान सम्मान नहीं रहा अपने घर में। मेरे बच्चे तो मेरा मान सम्मान करते हैं अंदर ही अंदर, मतलब, लेकिन और बहुत अच्छे हैं, संस्कारी बच्चे हैं। आपका जो बच्चों के साथ आया था ना रहने का, मैंने आपको नहीं बोला, उसमें ऐसा लगा था कि कोई जिना आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होगी किसी से इस बारे में। आपने पूछा मेरे से कि आप अपने इंडिया वाले बेटे के साथ रह सकती हैं या नहीं, तो इसमें आपके लिए जवाब आया था कि आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस लगेगी इसके लिए। हो सकता है आपके कोई टर्म्स कंडीशंस हो सकता है कुछ रेनोवेशन काम होना हो घर में,
मतलब आपके आपके आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा बैठेगा, ऐसा लगा मेरे को। हाँ, ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि एक्चुअली मेरा बेटा तो मुझे बहुत चाहता है, लेकिन थोड़ा मेरी बहू बहुत इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करती लाइफ में, तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है कोई बात, तो ऐसा है थोड़ा। तो हाँ, मैं इसमें ना ऐसा दिखता है कि अगर आपको, आप लोगों के बीच में कोई और जना बैठेगा, आप लोग बातचीत करेंगे, आप लोग देखेंगे, कई बारी होता है एक किचन है, कई बारी होता है हमें एक और किचन बनानी पड़ती है, कई बारी होता है कि ठीक है आप अपना देख लें, आप साथ रह रहे हैं, साथ रह के भी हम अलग रह रहे हैं, या साथ रह के हम साथ रह रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें हो जाती है ना अनीता जी? हाँ जी, ये तो आपने सही बोला, बिल्कुल यही मैं सोच रही थी, इसीलिए मैंने अपने पैसों के लिए पूछा आपसे कि मेरा कुछ इनकम किसी भी तो सोर्स से हो आपके जाए। लिए ऐसा तो दिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन उस टाइम पे आप प्लीज उनको ले लीजिएगा उन अपॉर्चुनिटीज पे। उस टाइम पे ये मत सोचिएगा कि मेरी बहू ये सोचती है, मेरी बहू वो बोलती है, मेरा बेटा ये करता है, ये सब मत सोचिएगा। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप वो ले लीजिएगा। आप आगे पीछे का कुछ मत सोचिएगा। आपको कुछ चीज दुख देती है, आपको किसी चीज कोई कोई आपके पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, आप उसके बारे में कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि जब मौका मिलता है तब हमें वो ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो चले जाता है वरना, और हमें वो मौका नहीं जाने देना है तो ऐसा। क्या ये वो स्पिरिचुअल लाइन से ही मिलेगी अपॉर्चुनिटी? हाँ जी, स्पिरिचुअल लाइन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं ऐसा नहीं इसने बोला, मैंने ये नहीं पूछा था, क्योंकि आपने मेरे से कहा था कि आपको स्पिरिचुअलिटी में नहीं चेक करना है, आपको एक जनरल चीज पूछनी थी, मैंने वो ही चेक किया था आपके अच्छा, लिए। ठीक है, तो थैंक यू। अपॉर्चुनिटी आएगी, मोस्ट वेलकम, और वो स्पिरिचुअलिटी से भी आ सकती है, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास। थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल सही बोला, और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, खुश रहना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज प्रीति अग्रवाल जी। प्रीति जी। Yeah. Hi Preeti, how are you? Hi, sweetheart. I'm good. I'm good. Acha, I can't see you. You can see me, or I can very much see you, Preeti. Okay, now I can. Now it's fine. Okay, Neeru, there is one question. Like after my this, all my test and all that is due in this end of August. So if everything is normal according to you, everything will be normal. So I want to, indulge myself in my business again in a little aggressive way. So should we check? No, not very slow. So I want to check, should I go slow or I can involve myself aggressively? So we should be asking that, keeping your health in mind, how your business will flourish. Should we check that out, and then accordingly you can see how you want to go about it? Okay. Yeah. So keeping Preeti's, close your eyes, Preeti. It will go very well. You will be in the limelight, it says. It says that it will flourish, and it even says that you could get overseas benefits. Okay. It says that, and it even says that you will be balancing two things. Maybe you will be balancing your home and work. It could be you're balancing your health and work. It could be whatever, but you will come out a star in it. And yes, there is prosperity ahead. So I can do it like in a little aggressive way, the way I used to do before, like 2 years. Shall we check that out? So is it a yes? We'll ask for a yes. No, you must take your family support and then work. Please do not go aggressively. It says you will need your family support. No, definitely with the family, but right now I'm doing it very slow, very slowly. Yes, you have to go like that only. Preeti, it very clearly says that you have to rest, recoup, and with the family support, you will manage it. Okay. Okay, I would ask, are you done, Preeti? I'm sorry I interrupted. Are you done? One more question was there. Go on. Yeah. Ask Preeti. So, Neeru, my son Vishesh, the older one,
He's right now he's with my husband. He's into my husband's business, and he's looking for another business venture. It's about agriculture and all. So should he go ahead with that? Vishesh, and you were asking whether he should go ahead with the agriculture business or not. Yeah. Okay. Yeah. It will be an immature decision for him, it says. Okay. And if he chooses to do that, then he should look into every aspect and deal with it in a mature fashion. Okay. Fine. Okay, so next is, do we have Rekha Gupta here? Rekha ji? No, she's not here. Okay, then we go to Neeru Khandelwal. Neeru ji? Yes. Hello. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है नीरू जी, थोड़ा जोर से बोलिए. We can't hear you. हेलो निरुपमा जी. नीरू जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, बढ़िया. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू. मेरा क्वेश्चन है, मेरा जो बड़ा बेटा है अभी लॉकडाउन की वजह से ही वाज डूइंग इवेंट मैनेजर था, बट लॉकडाउन की वजह से उसका काम तो बंद हो गया है, रिजॉर्ट वगैरह तो सब बंद ही हो गए हैं. तो उसने अभी अपना शुरू किया है मार्केटिंग में कैंपा का एंड मसाले वगैरह का, इसका अपना शुरू किया है विद हिज कजन. तो क्या उसके लिए ये लाइन सही है? उसका फ्यूचर क्या है? अनुतन जी आईज क्लोज करें, एनर्जीज इन्फ्यूज करें मेरे साथ आप. आइए देखते हैं. आपने कहा कि ये एक कैंपा का मसालों का काम कर रहे हैं अपने कजन के साथ, और हम उसकी सक्सेस रेट चेक कर रहे हैं, वो कैसा रहेगा. हाँ जी, ठीक है ना, यही पूछ रहे हैं ना अनुतन जी? जी. वो काम ठीक रहेगा ये कहता है, लेकिन वो थोड़े इनसिक्योर रहेंगे. आपके बेटे थोड़े इनसिक्योर रहेंगे, ये बताता है. काम ठीक रहेगा, पैसा आएगा, लेकिन वो वही बात है, क्योंकि वो इनसिक्योर होंगे तो वो थोड़ा उसको खर्चना कम पसंद करेंगे उस टाइम पे पैसे. पर काम ठीक रहेगा, पैसा आएगा. पर साथ में वो इनसिक्योरिटी भी लाएगा, क्योंकि शायद वही बात है कि इवेंट मैनेजर रहे हैं वो, और अभी जैसे पैसे रुक गया होगा, एक आदत हो जाती है ना बच्चों को. तो फिर अब जब वो थोड़ा थोड़ा पैसा आता है तो आप थोड़ा संभल के चलते हैं, क्योंकि आपको उसको री इन्वेस्ट करना है, आपको कैसे करना है. तो ये दिखा रहा है ऐसा. जी सर, मेरे हस्बैंड केमिकल उसमें लाइन में है, तो क्या उसको उस लाइन को जोड़ लेना चाहिए? पूछ सकते हैं. अगर वो लाइन ज्वाइन करेंगे तो उनको थोड़ा सा डिप्रेशन सा रहेगा. उनको शायद वो लाइन, मेरे को ऐसा लग रहा है, जो कार्ड बताते हैं मेरे को, जो गाइड कर रहे हैं, कि ये लाइन में उनके लिए ग्लूमीनेस है. शायद उनकी ये मन का काम नहीं होगा और वो उसको खुशी नहीं देगा. क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, तो दोनों में से कोई भी मेरे काम, मतलब ही इज कंसल्टेंट मैनेजर हैं, तो सर्विस में ही है, बट वो चाहते हैं कि मेरे काम को ये लोग आगे बढ़ाए. पर ये बेटा, अगर आपने जिनकी बात की थी, ये बेटे के लिए तो ऐसा दिखाता है कि ये थोड़ा सा इनको कम जमेगा, इनको वो काम थोड़ा सा ग्लूमी, थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा लगेगा. क्योंकि वो बंदा, आपने खुद ही बताया मेरे को कि वो इवेंट मैनेजर रहे हैं, तो वो ग्लैमरस लाइफ है. एंड जो ये काम होगा, ये थोड़ा सा वैसा वाला होगा ना, जिसमें इट इज दैट बाउंड थिंग. एंड जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं वो फ्री पसंद करते हैं. अगर आपके बेटे को पसंद है ये काम तो करें, नहीं तो मेरे को नहीं दिखता वो ये काम ज्वाइन करने से कि जिससे उनको खुशी मिलेगी इस काम से. थैंक यू. Shruti Mittal. We have 10 minutes. I would request, if we need to cover up everybody, we have to hurry up a little. Shruti Mittal, yes. Are you there? Hi. Yes, hi. Hi Shruti, how are you? I'm good. I'll quickly put my 2 questions. One, I want to know answer also. Yes, yeah, everyone is waiting for their turn. So one, if there is a change of house, one, we'll go one by one. Please Shruti, one by one. Just infuse your energies.
Yes, we stay in a joint family. It's not that I want a separation. I just want a change of house. Okay, so let's see what the card says for you. So let's close your eyes, infuse your energies. Just think of house, house, house. Okay, there you go, Shruti. Maybe there is some renovation that might happen in this house of yours. I'm not interested in that. I want a change of house. It's not exactly showing a change of house. I'm sorry. Okay, no problem. No problem. But renovation could happen. Can I help you with something else? Okay. And another thing was that I'm having some anxiety issue. Yeah, I'm having some anxiety problem last, say, 1 year. So I want to know if I will get rid of it and in how much time. So shall we check for your health? Yeah, anxiety issues, particularly anxiety issues. Particularly anxiety issues. So we will check whether you'll get relief from them or not. And it has to be relief. There's nothing like no. Okay. Okay. You will get rid of them. Great. Thank you so much. And you will go steady after that. Thank you. Thank you so much. Thanks, Rajnadi. Most welcome. Okay, next is Balaji. Balaji, please unmute. Hello. Balaji, hello, can you hear me? Anji, thank you very much. I also want to ask about my daughter. She is also an event manager, and she was running her own company, but now definitely it is going slow. So what should she attend to? Now she is into marketing definitely, but will it be successful? So we will check whether marketing is going to be successful for your daughter. If not, then what? No. Let's do one thing at a time. Let's go easy. Okay. So please infuse your energies with me. Okay. Thank you. And think of your daughter and her marketing. Yes. Yes, she will be successful in it. But tell her not to be lazy. Acha, she should continue with this work. I checked how marketing is going to go for her, and marketing seems to be good for her. And I checked and I told you that she should not be lazy. That is all. Okay. And one more question. She wants to have her own house. Okay. Will she buy that own house of herself? So will she, let's check about the house. Do we see a house coming up for your daughter now? Okay. Yes. Yes, we definitely see a house coming up for her. Okay, thank you very much. Okay, thank you, dear. Next is Manju Arora. Manju Arora ji. Hello, I'm Manju Arora. I want to ask for my. I can't see you. Where are you? I'm not able to on my camera. That's why. Okay. Hello, Manju ji. How are you? Please turn your camera on. It will be nice to see you. I'm trying, but not able to. Okay. Sorry. It's okay. Tell me. I want to ask my son's marriage. So let's see your son's marriage. So let's just, I wish I could visualize you, but that's okay. So let's just think of you and your son and celebrations. Sorry. Yes? You're just thinking about your son and his marriage right now in your head. Just think of that. Just visualize that. It's a wait and watch situation for him for now. Okay. Yeah. Not possible in this year. I checked whether I see your son's marriage happening. So it says it's a wait and watch. Okay. Thank you so much. Okay, next is Renu Gupta ji. We have just Renu Gupta ji and then Poonam Jain. Guys, we are almost done. Renu ji. I have two questions. One is about my health. Namaskar, कैसी हैं आप? Namaskar ji, Nirupa ji. I'm really enjoying your program. So I'll quickly. I'm so happy to help and guide. Thank you. One is about my knees problem, and I have a chronic itching problem.
itching problem and something in my eyes. So you tell me about my health first, and then I just want to know about relationships in the family with my children. 1 minute. In the health, what do you want to know about the itching in your eye? And some itching all over the body. It just doesn't go away. So let's see how your health is going to keep. Okay. Okay, Renji, please close your eyes and just infuse and just think of your health. What it shows is that again it is something very immature. ये ठीक हो जाएगा. हो सकता है आपको कुछ बेसिक चीजें करनी होती हो जो आप नहीं कर रही हैं. थोड़ी आईज को क्लीन रख लीजिए. But ऐसे कुछ मेजर नहीं दिखा रहा है मेरे को. आप some itching problems which just don't go away. Itching in the body, I don't. Itching in the body. It shows. ऐसा तो नहीं है, इसमें ऐसा नहीं दिखा रहा है, but it is just showing कि कुछ मेजर नहीं है उसमें. ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई साबुन है जिसे कपड़ा धुलता है जो रिएक्ट कर रहा है और वो या बार बार पहनते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है. या आप जब कपड़े धुलाती हैं तो उसमें थोड़ा सा डिटॉल डलवा के धुलवा लीजिए, तो अगर कुछ होगा उससे रिलेटेड तो निकल जाएगा. दिस इज नथिंग टू डू विद टैरो, बट आई एम जस्ट जनरली टेलिंग यू इट हैपेंस एट टाइम्स, you know, that we don't realize it, but because it's a body itch. No, it must be a food allergy. I'm getting food allergens. Okay. And another question is my relationship with my sons and daughters-in-law. Okay. Okay, there seems to be a lot of chaos and disputes in your relationship between your son and daughter-in-laws, and it is totally chaotic. I'm so sorry to see that, but that is what the guides, my cards are guiding me to say. Is that so? Is that so? Maybe no, only with one son, not with the. So shall we see that, how do we, shall we just look up? No, let's just see the hurdle and just see the guidance. Yeah, shall we? Yeah, yeah. The hurdle it shows is that you don't express your emotions, and you will not give any guidance to people unless they come and ask you. ऐसा होता है क्या? अपने आप से नहीं किसी की मदद करना, कोई आके पूछेगा तो भैया ठीक है मैं बता दूंगी. Is what it is saying. This is the hurdle, that you are not open to emotions and you're not open to guide people till they ask for guidance is your hurdle. And the guidance it says is that you have those intuitive powers in you. आपको अंदर से महसूस होता होगा कि अभी ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा हो सकता है, पर आप अपने पावर को यूज नहीं करती हैं. ऐसा है आपके साथ कि आप में इंट्यूशन तो होती है, अच्छा पता है अभी ऐसा हो जाएगा, या ना मेरे से कोई आके पूछेगा तभी मैं उसको बताऊंगी, मैं जाके क्यों बताऊं उसको, मेरे को क्या जरूरत पड़ी, आएगा पूछेगा बता दूंगी, मेरे को अपनी तरफ से नहीं जानने की जरूरत है. एंड इंट्यूशन हो रही है आपको मालूम है ऐसा होने वाला है, लेकिन आप उसके लिए कुछ करती नहीं हैं, ऐसा बता रहा है कार्ड. जैसा बोल रहे हैं फॉरगिव मी, मैं सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ जो मुझे दिख रहा है. All right, thank you. Okay, next is Poonam ji. This is the last question, please. We are already beyond time. Poonam ji. और जो वेट कर रहे हैं पूछना लेंगे, फटाफट से बोल दूंगी मैं. बहुत जल्दी से बोल दूंगी. हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा ऑलरेडी ज्वेलरी का बिजनेस है, मगर उसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहती हूँ, तो क्या वो सक्सेसफुल होगी, करनी चाहिए या नहीं? पूनम जी नमस्कार. अभी चेक करते हैं कि आपको बिजनेस एक्सपैंड करने से कैसा रहेगा. प्लीज आईज क्लोज करके इन्फ्यूज कीजिए एनर्जीज और सिर्फ अपने बिजनेस और ज्वेलरी और उसकी एक्सपेंशन सोचिए. इमेच्योर डिसीजन दिखा रहा है अभी फिलहाल के लिए. उसको फोकस करके काम कीजिएगा, अच्छे से फोकस करिएगा तभी उसको बढ़ाइएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा. थैंक यू आर वेलकम. आप फोकस करिएगा, ठीक से सोचिएगा, प्रॉस एंड कॉन्स देखिएगा. ये याद रखिएगा कि
अगर आप अभी बढ़ा रही हैं, अभी कोई जेवर खरीदने नहीं जा रहा है, अभी सब पैसे अपने संभाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट करेंगी, आपके पैसे अटकते दिख जाएंगे ना फिर। तो ये थोड़ा सा शायद इस टाइम पे इमेच्योर डिसीजन हो सकता है। तो जस्ट प्लान इट थ्रू प्रॉपरली एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ओके, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। श्वेता, can I also ask one more question, please? Balaji, एक second, बस एक just last question. Shweta Khurana ji, and then you can ask. Shweta Khurana ji. Okay. Krishna ji, just want to ask. My joint business. Hello. Shweta ji, I can't see you. Sorry. Just wait, please. Hello. Hello, ma'am. How are you? Good. How are you? I'm very well, thank you. I just want to ask, my husband has joint business and so many problems in that business. So I मतलब ऐसा ही रहेगा या it will change? Like I want. हम ये चेक करें कि joint business आपके husband के लिए कैसा है, ऐसा देखें। Like I want separation now, but because too many problems in that business. तो पहले ये देखते हैं कि joint business कैसा है, फिर देखते हैं कि अगर separate होंगे तो कैसा रहेगा, ठीक है? तो अभी आप जॉइंट बिजनेस के बारे में सोचिए, आंखें बंद कीजिए, एनर्जीज इन्फ्यूज कीजिए। हाँ जी, आपका जॉइंट बिजनेस अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर सेपरेशन में जाएंगे तो भी अच्छा दिखा रहा है, ये तो दोनों ही अच्छे दिखा रहे हैं आपके लिए। Because मैम मेरे 2 बेटे हैं एंड दोनों लाइक दे आर डूइंग देयर ओन जॉब्स, तो और उनका भी मुझे पूछना है कि उनका आगे कैसे रहेगा। मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ कि जो आप ज्वाइंट करें, आप सेपरेट करें, आपका दोनों अच्छा रह रहा है। अगर आप सेपरेशन करने में जा रही हैं तो कोई जना पीछे से हेल्प करेगा, हो सकता है आपके इन लॉज, हो सकता है पेरेंट्स, हो सकता है कोई पास से आएगा और वो हेल्प करेगा। ये भी हो सकता है कि उनको कुछ मतलब उनको कोई सपोर्ट मिलेगा। ओके, अपने बेटों से भी या मतलब किसी फैमिली मेंबर से? बेटा भी फैमिली हो गया। हाँ, उनको सपोर्ट मिलेगा, वो कर पाएंगे। बट अगर वो जॉइंट में भी करेंगे, आपको जो भी खिचड़ी दिख रही हो, लेकिन जॉइंट बिजनेस भी उनके लिए सक्सेसफुल है। मैं आपसे ये बता जैसे मतलब जैसे हमने बहुत कुछ देखा तो हमें लगता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बीच में हुई हैं, कुछ ऐसा लगता है कि जो भी मे बी मतलब मैं बात बताऊं, ये जो कार्ड है ना, ये ना विश कार्ड है और ये हर एक जने के लिए नहीं आता है। ये दिखाता है कि आपका जो सारा कुछ है ना, बहुत बहुत अच्छे से सजा हुआ है जब आप जॉइंट में कर रही हैं। तो मैं क्या बोलूं आपको, मेरे को तो बहुत अच्छा दिखता है, इतना अच्छा दिखता है कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि जॉइंट में बहुत अच्छा है। कई बारी हमें जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो गिरते भी हैं, टूटते भी हैं, बिखरते भी हैं, है ना। लेकिन जो वो सेट होता है बाकी बर्तनों का, अगर उसमें 12 प्लेट में से एक टूटा तो हम वो 11 हटा नहीं देते ना, है ना। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके हस्बैंड के लिए ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर अगर वो अपना भी करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये इनका जॉइंट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, प्लीज बट मेरे को मेरे बेटों के लिए बताना प्लीज। क्या बताऊं, पूछिए। जैसे उनका आगे लाइफ में कैसा, मतलब दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग। हम एक एक बेटा चेक करें, उसमें क्या चेक करने हैं? उनके फाइनेंसेस चेक करने हैं, लाइक मतलब आगे फ्यूचर उनका, जैसे आगे फ्यूचर में आपके बेटे के फ्यूचर देखते हैं। चलिए जी, जब तक आपने बोला तब तक मैंने डेक के अंदर वो दोनों बहुत सुंदर वाले कार्ड्स भी डाल दिए। थैंक यू। श्वेता जी, देखते हैं जी। तो ये आपके हम या आप अच्छा, मेरे को कैसे मालूम चलेगा रॉन्ग हो गया? ये तो कैसे मालूम चलेगा मैं कौन से बेटे की बात कर रही हूँ, बड़े की या छोटे की? कैसे मेरे को नाम देंगे, कुछ तो बताइए। हाँ, बड़े वाले बेटे का नाम है उमंग। तो पहले बड़े बेटे का चेक करते हैं, फिर छोटे का, ठीक है। तो ये हो गया उमंग के लिए। और दूसरा बेटा यजुर। यजुर जी, ये आपका कार्ड। तो बड़ा बेटा
बड़ा बेटा हो सकता है पार्टनरशिप में काम करे, उसका काम ठीक रहेगा, और अपने आप से भी कर सकता है, उसको इमोशनल बैलेंस, उसको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। वो बाहर आ सकता है आउट ऑफ इंडिया का, उसका कुछ लग रहा है? वो नहीं मैंने देखा, इसमें नहीं दिखता है, इस कार्ड में नहीं आया है। एंड जो आपका छोटा बेटा है वो शायद सोचता ज्यादा है, और उसको शायद होता है कि मैं ये क्यों करूं, इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी, कुछ ऐसा दिखता है इसमें। कैसा है श्वेता जी? ठीक कह रहे हो, वो बहुत सोचता है और अपने इमोशंस को कभी बताता नहीं। हाँ, तो उनका ऐसे ही दिखा रहा है कि वो कोई भी काम करेगा तो पहले अच्छा मैंने ये सब अचीव करा है और अब ये मैं करूं तो मैं क्यों करूं, तो वो अपने आप को वेट एंड वॉच की पोजीशन में डाल देता है। अच्छा, उसका भी अच्छा है, उसका भी अच्छा है, क्योंकि अचीवर तो हो ही गया ना। अगर कुछ अचीव किया है तभी तो आप सोच रहे हो ना, मैंने इतना कमा लिया, मैं और कमाऊं, क्यों कमाऊं, लाइक दैट ना। तो वेट एंड वॉच, चलो पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, तो वो भी अच्छा है। बट उसमें ऐसा आ रहा था कि वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, थोड़ा सोचते ज्यादा हैं। Okay, Nirupama, I think with this we would like to end the session. And thank you, Nirupama, for helping all our viewers. And with this, I would. 1 minute. Anyone left? Yeah. Yes, I wanted to. Nirupama, we have another session. I'm really sorry. बस एक इनका has. Okay. Acha, can we have a number? Yeah, it is immediately we can talk directly. Balaji, it is on the post. It is already on the post. Can Nirupama ji, can I talk to you directly abhi? Yeah, you can. है ना, अभी 5 मिनट में कर लेते हैं इसी में, ठीक है? I would like to want to close. One of you. Thank you very much. Thank you so much. Really enjoyed with you. And with this, we would end today's session. Tomorrow we have a session with Sapna Khandelwal ji. It is about 16 Sanskar. So I would request all of you to come and join us tomorrow and enjoy. Thank you, Srijna. Thank you. Bye. Thank you, Srijna.